it is not proven. No, so here we give only the. Good morning. Good morning all. Good morning DXN RVC YouTube चैनल व्यूअर्स. आज हमारे साथ और एक very vibrant young लड़की I can say because I have seen her as a small girl about 10 years back and all. She used to come with her daddy to Malaysia. Thank you, sir. And I remember still of where that Nepal and Darjeeling and all. I think it's almost 12 years back. Yes, yes. Yes. And now you have grown up and you have become adult and you have become DXN Star Diamond also. Thank you, sir. And her father, in fact, who started DXN. And he has built the DXN in Maharashtra, Mumbai particularly. And he is a crown diamond, isn't it? Yeah, crown diamond. Yes, he is a crown diamond, Mr. Mohammad Siddiqui. His daughter, Miss Ibrab Siddiqui. And she has been showing interest on nutrition, health and prevention from the childhood. I can make out because that is the reason why she has selected the study her The field, yes. yes, in the field of nutrition, and she has done Master of Science in Clinical Nutrition and diabetic, certified diabetic educator also. She is a diploma in physical fitness and weight management, and she has started her career after graduation in Global Hospital. Global Yes. Hospital Mumbai, Yes, Mumbai. because there is a Global Hospital in Chennai also. Yeah, there are 5 global hospitals in India. Yes. But the same group I take. Yeah, same group. Same group. Global Hospital Mumbai. Later, she has started working with the Tata Memorial Hospital, and she has been with them for quite a long time, and she has also visited various countries like Malaysia, Dubai, and TSIP. She is a TSIP qualifier to Malaysia and Dubai, and she has traveled to many other countries and TSIP places to like Bangkok, Nepal, Darjeeling, and all in 2018. Earlier, along with her father. And she joined DXN officially in 2018, though she has been using and supporting DXN products as a child. Yes. School girl. Since first standard. As a first standard. Going to share her experience today. And welcome to Miss Ibrab Siddiqui, Star Diamond. Talk about
the need of the hour. Thank you so much, sir. Good morning, everybody. सबसे पहले तो आरबीसी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, प्रोफेसर ने, कि उन्होंने मुझे इस कैपेबल समझा कि मैं आऊँ इस प्लेटफॉर्म पे और बात कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच सर। आपने मोटिवेशन नहीं दिया होता तो ये हिम्मत नहीं आती यहाँ के बात करने की। एंड सेकेंड ऑफ ऑल तो माय फादर मिस्टर एमवी सिद्दीकी, जो आप जैसे सर ने बताया, उनकी वजह से मुझे डीएक्सन के बारे में पता चला। उन्होंने मुझे डीएक्सन से इंट्रोड्यूस करवाया। जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब माय डैड जॉइंड डीएक्सन। तो तब से हम डीएक्सन प्रोडक्ट्स हमारे घर में देख रहे हैं, हम खाते आ रहे हैं, हम उसके बेनिफिट्स को जानते हैं और हम हमारी पूरी फैमिली को बताते हुए आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा वो है कि मेरे फादर ऐसे हस्ती है जो डीएक्सन में उन्होंने इतना कुछ किया है। प्लस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे शोल्डर पे आ जाती है कि इफ यू आर द मिस्टर सिद्दीकी's डॉटर यू हैव टू बी लाइक हिम, मतलब आपको भी उनके लेवल पे तो आना ही पड़ता है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हाँ वो लेगेसी कैरी ऑन करना है। सो आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने हूँ। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। प्लस माय मदर, वो हमारी बैकबोन है। अगर वो पीछे से हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना संभाले तो मैं और मेरे डैड ये सब आप आज जहाँ तक हम पहुंचे हैं वहाँ नहीं पहुंच पाते। तो थैंक्स टू हर ऑल्सो एंड नॉट फॉरगेटिंग डॉक्टर फिरोज सारंग's फैमिली। दे आर द कांस्टेंट मोटिवेटर्स बोल सकते हैं, जो अपलाइन डाउनलाइन का एक रिश्ता होता है डीएक्सन में। जैसे कि कोई भी दूसरी कंपनी में आप जाओगे तो बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में बहुत ज्यादा जेलेसी देखने मिलती है, बहुत ज्यादा ये सब होता है, बैकफायरिंग एंड ऑल दैट। ये डीएक्सन में बिल्कुल नहीं होता है। ये अपलाइन डाउनलाइन का जो रिश्ता है जो हमारा और डॉक्टर सारंग की फैमिली का है इज अमेजिंग एंड थैंकफुल। आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर सारंग एंड हिज फैमिली। वो लोग ने ही मुझे पुश किया था, डॉक्टर नजर सारंग ने, कि इब्रा तुम बोल सकती हो और तुम्हें बोलना चाहिए। तो आज मैं हूँ यहाँ पे तो इन सब लोगों की वजह से हूँ। सो दिस इज अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। और जैसे कि प्रोफेसर ने बताया कि मैं एक डाइटिशियन हूँ बाय प्रोफेशन। तो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं देख रही थी कि हेल्थ के क्या इश्यूज होते हैं और मेरे डैडी कैसे डीएक्सन से ये सब चीजें टैकल करते हैं, तो आफ्टर 10th मैंने डीएक्सन से ही इंस्पायर होके न्यूट्रिशन को चूज किया था कि अगर हेल्थ में इतना कुछ है, आज की तारीख में हेल्थ इतना जरूरी है, तो क्यों ना हम हेल्थ के बारे में ही पढ़े। तो इसलिए दिस वाज द इंस्पिरेशन विच टुक मी टुवर्ड्स बिकमिंग अ डाइटिशियन। और आज मैं डबल ग्रेजुएट हूँ उसमें। एंड आई एम थैंकफुल टू डीएक्सन एंड आरबीसी एंड प्रोफेसर फॉर डूइंग ऑल दिस फॉर मी। सो आज का मेरा टॉपिक मैं शेयर कर देती हूँ। So good morning once again everybody। और आज का जो मेरा टॉपिक है आरबीसी चैनल पे, उसका नाम है नीड ऑफ द आवर। अब नीड ऑफ द आवर का मतलब क्या होता है ये पहले हम समझेंगे। नीड ऑफ द आवर क्या मतलब है कि आज के समय की जरूरत, जो आज का हमारा समय है जहां कोविड-19 चल रहा है, 2020 में पेंडेमिक चल रहा है, तो यहाँ हमारी दो चीजें हैं जो हमारी नीड ऑफ द आवर कहलाती हैं। यानी दो ऐसी चीजें हैं जो आज हमने जानी है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज तो जैसे कि हर कोई इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ऑब्वियसली इम्यूनिटी। आज हमें, जैसे कि प्रोफेसर ने अभी कहा, कि हमें इम्यूनिटी को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रमोट हो चुकी है। देश के पीएम से लेके सारे फिल्म स्टार्स से लेके हर कोई आज इम्यूनिटी की बात कर रहा है। तो हमें इम्यूनिटी को प्रमोट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि डीएक्सन से हमें इम्यूनिटी कैसे मिलती है। तो पहले तो इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति।
यानी कि हमारी बॉडी की जो अंदरूनी शक्ति होती है डिजीजेस से, बीमारियों से, वायरस से, इन्फेक्शन से लड़ने की, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो वायरस है, बैक्टीरियाज है रेड और येलो कलर में, ये हमारी बॉडी में अलग अलग सोर्सेस से हमारे एनवायरनमेंट के हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है जो हमें इन चीजों से बचाती है। तो वो जो हमारी प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी का, उसे हमें बचा के रखना है, ठीक है। और जो दूसरी जरूरत है आज के जमाने की, वो है एम्प्लॉयमेंट। It's not moving. The slide is not moving ahead. Just a minute. जो आज के जमाने की हमारी जरूरत है वो है एम्प्लॉयमेंट। मैच नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कुछ रहा है। क्या मेरा वीडियो प्रॉपर्ली दिख रहा है? द स्लाइड ओके। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आज के हमारा दूसरा नीड ऑफ द आवर जो है वो एम्प्लॉयमेंट है। हम देख रहे हैं आज की जो यूथ है, जो 18 से 25 से 30 साल की उम्र के लोग हैं ना, उनकी जॉब्स जा चुकी है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। और हमारे माँ बाप हमारे पढ़ाई के पीछे लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। हमें बचपन से लेके कॉलेज से लेके ग्रेजुएट बनाते हैं, हमें डॉक्टर बनाते हैं, MBA बनाते हैं। हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। आज का सिनेरियो ऐसा है कि देयर आर नो जॉब्स, देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एक स्टडी आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इक्विवेलेंट, मतलब उतने ही लोग आज पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयड है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना हाई रेशो है बेरोजगारी का, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में। तो आज का हमारा टॉपिक इसी चीज पे फोकस्ड है कि आज की जरूरत है हमारी, पहली तो सबसे जरूरी रोग प्रतिकारक शक्ति, और दूसरी सबसे जरूरी चीज जो है हमारा रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं। सो कमिंग टू द प्रेजेंट रियलिटी, जैसे कि आप फोटो में देख ही सकते हैं, द प्रेजेंट रियलिटी इज दैट हमारे पास जॉब नहीं है, देयर इज नो जॉब अवेलेबल। इंसान का पेंडेमिक की वजह से, वायरस की वजह से ऑफिस जाना बंद हो गया, ऑफिस नहीं जाने की वजह से उसकी जॉब छूट गई, जॉब नहीं होने की वजह से उनको सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी नहीं मिलने की वजह से उन लोग उनके जो डेली बेसिस पे उनके जो खर्चा होता है घर का, वो सब नहीं कर पाते हैं। I'm moving the slides. स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही, स्लाइड आगे नहीं आ रही, इसी पे अटका हुआ है। बाकी तो सब अभी आया। देखो किसने बोला अभी स्लाइड मूव नहीं हो रहा है? Okay, now it's moving. It's moving now. So, okay. तो हमारा नीड ऑफ द आवर, जैसे मैंने पहले बोला, इम्यूनिटी और एम्प्लॉयमेंट है। पहली है इम्यूनिटी, जैसे आप पहले शायद कुछ टेक्निकल एरर की वजह से स्लाइड दिख नहीं रही थी, तो ये है हमारा नीड ऑफ द आवर और ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसका है पहला जरूरत है इम्यूनिटी जो है हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, और दूसरी जरूरत जो है वो है रोजगारी जो है एम्प्लॉयमेंट।
तो ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी है आज की, जिसमें हमारे पास जॉब नहीं है, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से हम सब लोगों को घर पे रहने के लिए बोला गया है, और घर पे रहने की वजह से हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं। ऑफिस नहीं जाने की वजह से सैलरी नहीं आ रही है, सैलरी नहीं आने की वजह से हमारे जेब खाली है, जेब भी खाली है, वॉलेट्स भी खाली है। सो दैट इज बेसिक। I am on slide number 3. So no job, no money. So I have changed the slide now. So introducing DXN. DXN जैसे कि हम सब जानते हैं एक MLM कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, और ये जो है वो आज के जमाने में एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हमारे प्रोफेसर का नेटवर्क 222 कंट्रीज में ऑलरेडी है, तो ये 222 कंट्रीज में DXN ऑलरेडी फैला हुआ है। ये जो कंपनी है वो पिछले 27 साल से 27 years से है। सो इट्स अ फ्लरिशिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। No, the slide I have changed the next. Okay. So this is the fastest direct selling multi-level company. Okay. तो ये आज के जमाने में हमारा बेस्ट ऑप्शन है, और ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है ये हम अभी आगे बात करेंगे इस बारे में। ये एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी है जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग फ्री में होती है, और वहां पे हमें स्टार्टअप करने के लिए काफी कम मनी इन्वेस्ट करके करना पड़ता है। सेकेंड चीज है, सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल का मतलब ये होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, ये सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करता है। जैसे कि अगर हम जनरली हम एक जॉब के लिए अप्लाई करने जाए, जैसे अगर मैं एक डाइटिशियन हूँ और मैं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ, तो वहाँ पे क्राइटेरिया होता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास हॉस्पिटल में काम करने का इतने सालों का तजुर्बा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको हम लेंगे, तभी हमारी कंपनी में आपको मौका मिलेगा काम करने का। DXN में ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस चाहिए मार्केटिंग में, तुम इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रेसिडुअल इनकम। नाउ रेसिडुअल इनकम का मतलब ये है, एक तो होती है प्राइमरी इनकम। प्राइमरी इनकम वो होती है जो हम कमा रहे हैं और हमें मिल रही है, जैसे हम मेंबर बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हमें हमारी इनकम मिल रही है। दूसरा होता है सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम इज जो हमारी डाउनलाइन है, जितने लोगों को हमने ऑलरेडी ज्वाइन कराया है उनकी भी इनकम हमारे पास आती है, तो ये होता है रेसिडुअल इनकम। जैसे कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम इतना अच्छे से काम कर ले और इतना अच्छी पोस्ट पे आ जाए कि आगे जाके हम अगर किसी वेकेशन पे जाना चाहे तो हमारे पीछे हमारा काम होना चाहिए और हमें पैसा मिलना चाहिए। सो दिस इज व्हाट DXN इज अबाउट। मतलब आप अच्छे से अभी काम करो, अपना नेटवर्क बनाओ, फिर आप जो वेकेशन पे जाना चाहो आप जा सकते हो, आपका नेटवर्क आपके लिए काम करने वाला है। जैसे कि एक हमने बीज डाल के एक झाड़ उगा दिया है, उस झाड़ से हर साल हमें फल मिलेगा, लेकिन DXN के झाड़ से हमें हर रोज फल मिलता है, हर साल नहीं। तो ये एक अट्रैक्टिव होम बेस्ड बिजनेस है। जैसे कि आज की तारीख में हर किसी को घर से काम करना है, किसी को बाहर नहीं जाना है, बाहर इन्फेक्शन है, तो ये पहले से ही एक होम बेस्ड बिजनेस था। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ऑफिस में जाके काम करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे नेटवर्क बना सकते हो, आप घर बैठे आपके फोन पे बिल्स बना सकते हो, आप घर बैठे अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज के इट्स $100 billion कंपनी।
और उसके बाद वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रीडम। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई आपको टोकने नहीं वाला है कि आप इतने बजे क्यों आए, आप अभी क्यों नहीं आए, आप लेट आए, आपने टारगेट मीट नहीं किया, अभी आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम है हमारे पास, हम जब चाहे तब काम कर सकते हैं, हम जब चाहे काम नहीं कर सकते। हमें जितना मेहनत हम करेंगे उतना मनी हमको मिलेगा, और जितना मेहनत हम नहीं करेंगे उतना नहीं मिलेगा। तो दिस इज टाइम फ्रीडम। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बॉसी चीजें पसंद नहीं होती है कि बॉस का प्रेशर है सर पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जैसे टिपिकल कॉर्पोरेट्स में होता है कि ये बैक बाइटिंग एंड ऑल जो ऑफलाइन डाउनलाइन का चलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट्स अ ग्रेट पोटेंशियल टू बी अ मिलियनेयर। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। जहाँ आपको अगर आपको इच्छा है तो हमारे पास यहाँ पे रास्ता है। अगर आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, अगर आपको वायरसेस से बचना है, प्लस आपको पैसे भी चाहिए, आपको एम्प्लॉयड भी रहना है, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू। नाउ वी विल कम टू इलनेस। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। जैसे हमारी बॉडी हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो सेल से बनी हुई होती है। जो दो मेन चीजें हैं जो सेल को बीमार करती हैं, हमारे सेल को बीमार करती है, वो है टॉक्सिन्स और इम्बैलेंसेस। ओके, तो नो जस्ट वेट, आई विल टेल यू। ओके, तो टॉक्सिन्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें से जो प्रदूषित चीजें होती है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, उसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं। तो पहले तो टॉक्सिन्स बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे सोर्सेस से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हमारे हवा, जो हमारे एयर है वो पॉल्यूटेड होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हम इनहेल करते हैं। हमारा जो पानी आता है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। हमारा फूड सोर्सेज जो है, हमारे खाने की सोर्सेज जो है, हर जगह से हम हमारी बॉडी में टॉक्सिन इनकलकेट कर सकते हैं। और टॉक्सिन्स हमारे जो केमिकल्स होते हैं खाने में, जैसे हम रेडी टू ईट चीजें, प्रिजर्वेटिव से भरी हुई चीजें लेते हैं, उसको भी हम अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेंगे तो उससे भी टॉक्सिक हो सकता है। अब जब ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। लाइक जो हमारी बॉडी की नॉर्मल सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर हम सो भी रहे हों तो हम सांस लेते रहते हैं, हमारी बॉडी की सारे सिस्टम्स चलते रहते हैं। तो एक बार टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एंटर कर गए, जो हमने पिक्चर दिखाया है, वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करके अंदर आ गए, तो हमारी बॉडी का सिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर हमारी बॉडी का सिस्टम इम्बैलेंस हुआ तो हम बीमार हो जाएंगे। तो ये दो मेन कारण है जिसकी वजह से एक इंसान बीमार पड़ सकता है। नाउ इंट्रोड्यूसिंग गैनोडर्मा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, दिस इज गैनोडर्मा विच इज कॉल्ड द मिराक्युलस किंग ऑफ हर्ब्स। जैसे कि हमने टॉक्सिन्स की बात की, तो पहली बात तो गैनोडर्मा इज नॉन टॉक्सिक एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। मतलब इसमें कोई टॉक्सिन्स मौजूद नहीं है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी पे। ये नॉन स्पेसिफिक है। जैसे आजकल बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज जो होती है, जो हम हॉस्पिटल्स में जनरली देते हैं, वो ना स्पेसिफिक होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको एंटासिड दिया जाएगा जो सिर्फ एसिडिटी पे ही काम करेगी। अगर आपको शोल्डर पेन है तो आपको एक पेन रिलीवर दिया जाएगा जो सिर्फ इस पे काम करेगा। गैनोडर्मा इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि ये स्पेसिफिक एक जगह पे नहीं काम करता है, ये हर एक इलनेस को फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरीथिंग, हर चीज पे ये हेल्प करता है। तो ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग करता है ये हमारी बॉडी के सेल्स की। ये सेलुलर लेवल, जैसे हमने आपको सेल्स बताए पहले, ये सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी के काम करेगा। तो इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ एडेप्टोजिन। अब एडेप्टोजिन ये एक वर्ड है जो यूज किया जाता है हर्बल प्लांट्स के लिए। जो प्लांट्स में हर्बल शक्तियां होती हैं, मतलब जिनमें क्योर करने की क्षमता होती है, उन लोगों को एडेप्टोजिन कहा जाता है। हम कंटिन्यू करेंगे एक 2 मिनट्स ब्रेक के बाद, क्योंकि अजान का वक्त हो गया है। मैम
सो वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे गैनोडर्मा के बारे में जो किंग ऑफ हर्ब्स है, और हम बात कर रहे थे एडेप्टोजिन वर्ड के बारे में। तो एडेप्टोजिन जो है वो एक वर्ड दिया गया है हर्बल जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि अश्वगंधा और तुलसी और थिसल्स, ये सारे जो हर्ब वाले प्लांट्स होते हैं उनको एडेप्टोजिन कहा जाता है। तो गैनोडर्मा लूसिडियम हियर इज कॉल्ड द किंग ऑफ एडेप्टोजिन। एडेप्टोजिन का मतलब ये है कि इसको हम कितनी भी मात्रा में हमारे बॉडी में लेंगे तो वो हील ही करेगी हमारी बॉडी का, वो कभी भी इंटॉक्सिकेट या फिर जैसे साइड इफेक्ट बोलते हैं या फिर टॉक्सिक नहीं बनेगी। ये हमारे सेल्यूलर लेवल पे काम करेगा। जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपने एक सेल का फोटो देखा होगा, तो ये हमारी बॉडी में सेल्यूलर लेवल पे काम करेगा और हमारी बॉडी के जो सेल्स में जो प्रॉब्लम होगी उसको हील करेगा। मतलब अगर हम बीमार है तो हमारी वो बीमारी नहीं ठीक करता है, हमारे सेल्स में जो डैमेज हुआ है जिसकी वजह से हम बीमार हुए हैं, ये उस सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर करेगा और उस सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर करते ही हमारी बॉडी अपने आप हील होके उस डिजीज से हमें बचाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द मिराक्युलस किंग ऑफ हर्ब। इसीलिए इसे मिराक्युलस कहा गया है, चमत्कारी कहा गया है कि ये ऐसा हर्ब है जो हमें हर चीज से बचा सकता है। तो अब हम इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की वो शक्ति होती है जिससे हम 3 चीजों से लड़ सकते हैं। पहला है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, वो एक सोर्स होता है हमें बीमार करने का, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उससे हम बच सकते हैं इम्यूनिटी अगर हमारी पक्की हो तो। दूसरा होता है पैथोजेंस। पैथोजेंस जो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड के थ्रू या फिर हमारे पानी के थ्रू हम इनहेल कर ले सकते हैं या फिर हम ले लेंगे तो उसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। तीसरी चीज है वायरसेस। वायरसेस के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आज की मीडिया ने बहुत कुछ हमें वायरसेस के बारे में बता दिया है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को मजबूत बनाएंगे तो हम बैक्टीरिया, पैथोजन या फिर वायरस सबसे लड़ सकते हैं। तो ये एक जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, RGGL, स्पाइरुलिना और मोरिन्जी-को, ये 3 जो है हमारे DXM के 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्टैंडर्डाइज किए गए हैं हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ना अभी हमें इम्यूनिटी के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि इम्यूनिटी एक वो चीज, ऐसी चीज नहीं है जो हम एक दिन खाएंगे या फिर एक दिन में हमारी बढ़ के मतलब बूस्ट हो जाएगी और हमें बीमारी से बचा लेगी। इम्यूनिटी हमें डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करना है। ये अगर कोई ऐसी चीज प्रमोट कर रहा है कि आप ये गोली खाओगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है ये फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये फार्मा सप्लीमेंट्स नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। जैसे कि मैंने गैनोडर्मा के बारे में बात किया तो ये जो RGGL है ये गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। तो हम डेली 6 पेयर ऑफ RGGL लेंगे। दूसरी चीज है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के बारे में हम आगे बात करेंगे। स्पाइरुलिना ब्लू ग्रे एल्गे होता है जो दूसरा एक फूड सप्लीमेंट ही है, दवाई नहीं है। तो स्पाइरुलिना हमें डेली 12 कैप्सूल्स लेना है। और तीसरा जो है नोनीजी। नोनीजी एक मोरिंडा सिट्रोफिलिया फ्रूट का एक जूस है जो 100% ऑर्गेनिक है, अल्कलाइन है नेचर में, ये सिर्फ एक फ्रूट जूस है। तो यहाँ पे उसका स्टैंडर्ड डोसेज दिया गया है अप टू 30 ml नोनीजी डेली, मतलब कम से कम 30 ml तक आपको नोनीजी डेली पीना है। वरना अगर आप चाहे तो आप एक बॉटल एक दिन में भी पी सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत फेमस यूरोप के क्राउन एम्बेसडर है लैग्लो कैस्को, वो डेली 1 बॉटल ऑफ मोरिन्जी पीते हैं। अगर आप उनको फॉलो करो सोशल मीडिया पे तो वो डेली अलग अलग पोजीशन में
ये पूरी एक बोतल नोनी जी की पीते हैं जस्ट टू प्रूव कि ये इंटॉक्सिकेट नहीं करता है। जैसे मैंने बोला एडेप्टोजिन की बात, कि एडेप्टोजिन हम कितनी भी मात्रा में हमारी बॉडी में लेंगे वो हील ही करेगी। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ डीएक्सिन कि ये 3 चीजें जो है आरजीजीएल, स्पिरुलिना और मोरिंजी, अगर ये तीनों चीजों को हम डेली हमारे डाइट में फॉलो करेंगे तो ये चीज हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने में और हमें बीमार पड़ने से बचाएगी। और आज के जमाने में हमें यही चीज चाहिए कि हमें कोई ऐसी चीज मिले जिससे हम हॉस्पिटल ना जाए, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटल भले हमें वायरस ना पकड़े, अगर हम नॉर्मल फीवर से भी बाहर घर के निकलते हैं और डॉक्टर तक जाते हैं तो हो सकता है उस प्रोसेस में या फिर वहां उस डॉक्टर की क्लिनिक तक जाते जाते हमें वायरस पकड़ सकता है। तो हमारा मेन गोल यही होना चाहिए कि हम घर में रहे, सुरक्षित रहे, हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत हो, प्लस हम पैसे भी कमाएं घर में बैठ के। तो ये एक इजी वे है जहां से आप अगर ये गैनोडर्मा के प्रोडक्ट्स, डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं तो ये प्रोडक्ट्स आपको इम्यूनिटी तो दे ही रहा है, प्लस ये आपकी इनकम भी दे रहा है आपको, तो आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो अब डीएक्सिन के प्रोडक्ट्स के साथ साथ और हमारी जैसे हमने बात किया है रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ हमें करनी है जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। पहला तो है डाइट। जैसे मैं डाइटिशियन हूं तो मैं डाइट के बारे में ज्यादा बोलूंगी। यहाँ लिखा हुआ है ईट अ रेनबो। ईट अ रेनबो मतलब एक रेनबो में जितने कलर्स होते हैं ना उतनी कलरफुल आपकी खाने की प्लेट होनी चाहिए। जो सफेद चीजें होती हैं जैसे कि शक्कर है, मैदा है, नमक है, ये सारी चीजें ज्यादा नहीं खानी है। हमें ज्यादा से ज्यादा कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करनी है। जितना हम ये सारी कलरफुल चीजें खाएंगे उतना हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। अभी फिजिकल एक्टिविटी से ये मेरा मतलब नहीं है कि हमें जिम जाने शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिम्स ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से बंद हुए पड़े हैं। हमें घर में जो हमारे होम बेस्ड वर्कआउट्स हमारे हो सकते हैं, जैसे सबसे बेस्ट हमारा शून्य है जो हमें डॉक्टर लिम ने सिखाया है कि शून्य प्रैक्टिस करना है, डेली 99 काउंट्स करने हैं बैकवर्ड्स, और जो शून्य के वर्कआउट्स होते हैं वो आप डेली फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर लिम को या डॉक्टर सवेरा को। वो डेली आपको शून्य के बारे में बताएंगे। तो हम डेली हमारी फैमिली को लेके बैठे एक टाइम फिक्स कर ले, मॉर्निंग है या इवनिंग है, जब भी हमें शून्य प्रैक्टिस करना चाहिए। और नॉर्मल जो फ्लोर बेस्ड एकदम हल्के वर्कआउट्स होते हैं जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, ये सारी चीजें हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सब करने से हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म बढ़ना जरूरी है। क्योंकि वो हमारे फिर जैसे मैंने वो सेल वाली स्लाइड में बताया था इम्बैलेंस कॉज करता है। तो हम अच्छे प्रोडक्ट्स तो खा रहे हैं, हम गैनोडर्मा ले रहे हैं, हम अच्छे डाइट पे है, पर हमारी बॉडी स्टिल है। हम एक काउच पोटैटो बन के नहीं रहना चाहिए, मतलब पूरा दिन बेड पे बैठे हैं, पूरा दिन सिर्फ फोन में देख रहे हैं या फिर टीवी पे कुछ देख रहे हैं, ऐसे नहीं रहना है। क्योंकि घर में बैठा रहेगा इंसान तो उसको आदत छूट जाती है चलने फिरने की। जब हम ऑफिस जाते थे, जब हम कॉलेजेस जाते थे तो हम बहुत ऊपर नीचे करते थे, पर अब हम घर में बैठे हैं। तो हमें अपने माइंड को एक्टिव रखना है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन खुल जाएगा और लॉकडाउन खुलने के बाद हमें हमारी पुरानी वाली फिजिकल एक्टिविटी पर फिर से आना है। तो उस वक्त हमें दिक्कत आएगी, उस वक्त हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी। उस वक्त हमें जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के काम है वो सब भी करने में प्रॉब्लम आएंगे। क्यों? क्योंकि हम 4-5 महीने से घर पे बैठे थे आइडियल। तो ऐसे सिचुएशन पे हमारी बॉडी को नहीं लाना है। तीसरी चीज जो है, जो बुरी आदतें होती है जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड इज अफेक्टिंग योर लंग्स पे इफेक्ट करता है। तो हमारे को अगर स्मोकिंग वगैरह करने की आदत हो तो हमारे लंग्स ऑलरेडी वीक होंगे और फिर ये सारी चीजें वायरस को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो अलॉन्ग विद हैविंग एवरीथिंग ये सारी बुरी आदतें भी छोड़ना जरूरी है। चौथा, जैसे कि आप फोटो में नीचे देख सकते हैं, ये एक BMI बोलते हैं इसे, बॉडी मास इंडेक्स, उसका रेशियो दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो आप देख रहे हैं वो ब्लू कलर में है, वो अंडरवेट है, मतलब उसका वजन जो है वो उसकी हाइट के हिसाब से कम है, वो पतला है, अंडरवेट पर्सन है वो। दूसरा जो आप देख रहे हैं ग्रीन में, वो हेल्दी वेट है, वो वेट मेंटेन करने का टारगेट सबका रखना है हमें, कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन हेल्दी होना चाहिए। ना हम बहुत ज्यादा पतले होने चाहिए जिससे ब्लू में है, ना हम बहुत ज्यादा मोटे होने चाहिए। जैसे आप येलो में देख रहे हैं वो ओवरवेट है, वो इंसान का जो
मोटापा है वो उसकी हाइट से ज्यादा उसका वेट है, और जो रेड वाला है वो एकदम ही मॉर्बिड ओबीस है। तो अगर हमारा बॉडी, हमारा वजन मेंटेन्ड नहीं होगा तो भी हम ज्यादा से ज्यादा बीमारी को प्रोन हो सकते हैं। तो हमें, जैसे कि मैंने बताया, वर्कआउट से और डाइट से हमारा वजन मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर पतले हैं तो हम कुछ भी फ्राइड, कुछ भी बाहर का कुछ भी खा सकते हैं, हमें वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हम हेल्दी डाइट लेंगे और हम वर्कआउट करेंगे तो हमारी बॉडी का हम मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे, उसकी वजह से हमारी भूख बढ़ेगी, और भूख बढ़ने की वजह से हमारा वजन बढ़ेगा। और वेट लॉस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेट गेन करना, जो हमें हमारा BMI 18 से 24 के रेंज में रखना है। जो पांचवी चीज है वो है नींद। अब नींद क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी को रेस्ट भी करना जरूरी है। मोस्टली ये कोविड के दौर में बहुत सारा न्यूज देख के बहुत सारे लोग टेंशन में आके सो नहीं पाते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के आजू बाजू में डेथ्स हो रही है। तो ये स्ट्रेस की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नींद खराब कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना है। अब हाइजीन, WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमें हाइजीन के बहुत ज्यादा मेजर्स बताए हैं कि अगर हमें इफेक्ट नहीं करना है, हमें कोविड से इन्फेक्टेड नहीं होना है, तो हमें हाइजीन मेजर्स अपनाने हैं, जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइज करना, मास्क लगाना। तो ये सारे मेजर्स हम पढ़ेंगे और हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, क्योंकि इवन इफ वी ईट गैनोडर्मा, इवन इफ वी आर हैविंग स्पाइरुलिना, हम खा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, हम बाहर ऐसे ही घूम रहे हैं, हम सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं हाथों को, तो हम खुद को नहीं बचा सकते हैं वायरस से। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अनलॉक हो चुका है, जो लॉकडाउन था वो अनलॉक हो चुका है, सब लोग ऑफिसेस खुल गए हैं, सब लोग जाने लगे हैं काम पे। हमें एक चीज याद रखना है कि वायरस खत्म नहीं हुआ है। अनलॉक इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारी देश की जो इकोनॉमी है, जो हमारे देश को पैसे की जरूरत है, इसीलिए उसने अनलॉक किया है कि हम लोग काम करेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इसलिए अनलॉक हुआ है। इसलिए अनलॉक नहीं हुआ है कि कोरोना चला गया है या फिर वायरस जा चुका है और हम अभी आजादी से घूम सकते हैं। तो हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं, हम सारे मेजर्स लेके ही निकलेंगे, और जब जरूरी हो तभी निकलेंगे। नाउ ये जो लास्ट है, नो स्ट्रेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आजकल जो जिसको कोविड ना भी हो, वो ओवर स्ट्रेस होके, डिप्रेस होके भी बीमार हो रहा है। हम देख रहे हैं आसपास के सिनेरियोज में, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि लोग परेशान, टेंशन की वजह से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उनको कोविड नहीं है, वो लोग ने सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, पर डेली वो लोग न्यूज देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स वाले बता रहे हैं कि बढ़ रहा है कोविड, इसको हो रहा है, उसको हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ते जा रही है, डेथ रेट बढ़ते जा रही है। उस वजह से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। तो हमें शून्य प्रैक्टिस इसलिए भी करना है कि हम स्ट्रेसफुल नहीं रहेंगे। शून्य प्रैक्टिस करने से 99 काउंट जो हम बैकवर्ड लेते हैं, उससे हमें पता चलता है हमारा माइंड कितना डिस्टर्ब है। अगर कहीं भी हम हमारी काउंटिंग मिस करते हैं तो हमें फिर से काउंट करना है, हमें ध्यान रखना है काउंटिंग पे। अगर हमारा ध्यान काउंटिंग से भटक जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड पीस में नहीं है। और अगर हम डेली शून्य प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा माइंड एट पीस रह सकता है। जब हमारा माइंड एट पीस रहेगा तो हमें अच्छी नींद भी आएगी। जब हमें अच्छी नींद आएगी तो हम अच्छे से खाना भी खा पाएंगे, और ये सारे जो एलिमेंट्स है वो सब मिलके हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाएंगे। तो हमें डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स के साथ साथ, इम्यूनिटी के साथ साथ जो यहाँ पे दिए गई चीजें हैं, इन्हें भी फॉलो करना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। ये भी एक नीड ऑफ द आवर का छोटा सा कंपोनेंट बनता है कि ये आज के जमाने की जरूरत है और हम इसे निग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम इसे निग्लेक्ट करेंगे तो हम अपने आप को फिर बीमार करेंगे। अब ये एक 2020 में एक पेपर लॉन्च हुआ है जिसका टाइटल अगर आप पढ़ सकते हो तो यहाँ लिखा हुआ है एल्गे, जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, जो हमारा स्पाइरुलिना है जिसका फोटो नीचे दिया गया है। एल्गे पाउडर जो होता है वो एक पोटेंशियल सोर्स है टू प्रिवेंट एंड क्योर द नोवेल कोरोना वायरस। ये पेपर अब हमें क्या बताता है? ये पेपर हमें बताता है कि स्पाइरुलिना is a potent tool to combat the COVID-19 global pandemic। मतलब IMSAM ने एक पेपर लॉन्च किया है जिसमें वो प्रूफ करता है कि जो स्पाइरुलिना है
उससे हम कोविड-19 को कॉम्बैट कर सकते हैं। ये जो स्पाइरुलिना है हमारे पास, उससे अगर आप जाएंगे सोशल नेट पे कहीं पे भी, आप IMSAM, ये जो नीचे IIM SIM दिया हुआ है, इसको टाइप करके इसका पेपर, ये पूरा पेपर आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 चीजों पे फोकस करेंगे, जो हमने रेड बॉक्स में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उन 2 चीजों पे फोकस करेंगे। तो पहली चीज, इस स्पाइरुलिना में ऐसे क्या तत्व है जिसकी वजह से ये कोविड-19 में हेल्प करता है। पहली चीज है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल स्टडीज जो स्पाइरुलिना पे की गई थी। साइंटिस्ट ने जो इस पे स्टडीज किया हुआ है, उससे बताया गया है कि जो इन्फेक्शन फैलता है, जब इन्फेक्ट हो गया इंसान कोविड से, तो उसके लंग में रैपिडली ये इन्फेक्शन फैलता है, और ये इन्फेक्शन रैपिडली फैलने की वजह से उसका सर्वाइवल रेट कम होता है। रैपिड रेप्लिकेशन है, इसलिए सर्वाइवल रेट कम होता है, इसलिए डेथ ज्यादा होती है। तो स्पाइरुलिना का पहला तत्व तो ये है कि ये जो वायरस रैपिडली हमारी बॉडी में फैला जा रहा है, उसको कम करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। दूसरा, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो हमारी बॉडी में जो घाव दे दिया है उस वायरस ने, उस घाव को दूर करेगा और दूसरों तक फैलने से भी बचाएगा। तो पहली चीज ये कि हम अगर इन्फेक्ट हो गए हैं तो हमारी इन्फेक्शन पे भी काम करेगा, और दूसरी चीज ये जो तेजी से ये फैल रहा है हमारी बॉडी में और जो तेजी से ये दूसरों पे फैल रहा है, ये दोनों चीजों को स्पाइरुलिना कम करेगा। तो जैसे लिखा गया है कि जो एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स होते हैं स्पाइरुलिना में, वो लंग के पैरेन्काइमा को, जो हमारे लंग्स में जो पैरेन्काइमा सेल्स है, उनके में डिस्ट्रेस हो जाता है। जैसे बाहर से वायरस आ गया तो हमारे लंग्स इन्फेक्ट होने लगे, तो उसके वो डिस्ट्रेस को रोकता है। जब वो उस डिस्ट्रेस को रोकेगा तो मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, जो बढ़ रही है मोर्टेलिटी रेट वो कम हो जाएगी। सो ये एक मिराक्युलस चीज है यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला, आपको इम्यूनिटी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी ऑलरेडी प्रमोट हो चुकी है। जैसे कि सर ने बोला कि इम्यूनिटी प्रमोट हो चुकी है, हमें इसे प्रमोट करना है जो इम्यूनिटी दे रहा है, और ये प्रूवन है। हम रिसर्च पेपर्स, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, उन पेपर्स को प्रेजेंट करके इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई इम्यूनिटी के लिए ये प्रूवन है। नाउ दिस इज, ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है डीएक्सन का, जो एक इनोवेटिव चाय है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1.4 मिलियन पाउंड्स ऑफ टी इज बीन ड्रैंक एवरी डे। डेली बेसिस पे पूरी दुनिया में 1.4 मिलियन पाउंड्स ऑफ चाय पी जाती है। लोगों को चाय इतनी पसंद होती है, और स्पेशली इंडियंस को चाय बहुत ज्यादा पसंद होती है। मतलब उनका दिन शुरू नहीं होता चाय से, दिन खत्म नहीं होता चाय से। अगर घर में है, बैठे हैं, बारिश का मौसम है तो चाय चाहिए, अगर ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, सर दुख रहा है तो चाय चाहिए, हर 2-2 घंटे पे उनको चाय चाहिए होती है। तो अभी चाय का साइड इफेक्ट ये होता है कि ये एसिडिक होती है, हमारी बॉडी में एसिडिटी पैदा करती है। ज्यादा गर्मी देगी तो हमारे फेस पे बॉयल्स भी आ सकते हैं। सो हमें प्रमोट करना है हमारी डीएक्सन की रिशी गैनो टी, बिकॉज ये अल्कलाइन पीएच की टी होती है। हमें एक इंसान की आदत हम छुड़वा नहीं सकते हैं उससे। हम उसे ये नहीं बोल सकते कि चाय पीना बंद कर दो, वो चाय पीना बंद नहीं करेगा, वो आपसे बात करना बंद करेगा, क्योंकि वो नहीं छोड़ सकता है। हमें उस चाय को रिप्लेस करना है, हमें हेल्दी चाय से उसकी जो अनहेल्दी चाय है उसको रिप्लेस करना है। और हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि हम दूध वाली, शक्कर वाली चाय ना पी के ब्लैक टी पियेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छे से बढ़ाएगी, उससे इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स कम होंगे। क्योंकि हम इतना ज्यादा अगर पूरे दिन में चाय पी रहे हैं तो हम ब्लैक टी पीना ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। सो एवरीबॉडी लव्स टू ड्रिंक टी, इसीलिए डिलीशियस और इनोवेटिव टी जो है वो हमें पीना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे टी रखी हुई है। Now coming to डीएक्सन कुकीज, मधुरम कुकीज। जैसे कि हम सबको बिस्किट्स खाना बहुत पसंद है, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। मतलब वो एक इजी स्नैकिंग होता है हमारे लिए। जैसे हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है खाने के लिए, तो हम बिस्किट खाते हैं। जनरली जितनी भी बिस्किट्स होती है मार्केट में वो सब मैदे से बनी होती है, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं। तो हमारे डीएक्सन ने
कुकीज बनाए हैं जिसमें ना आर्टिफिशियल कलर है, ना प्रिजर्वेटिव है, ना ट्रांस फैट है, ना मैदा है। वो जो हमने एडेप्टोजिन मशरूम की बात की थी उससे बनाए गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 3 वैरायटी है हमारी कुकीज की। जो पहली वाली है उसमें डीएक्सिन की कॉफी है, कॉफी प्लस जीएल पाउडर और प्लस बाजरा दिया गया है इसमें ना। बाजरा में बहुत ज्यादा अच्छे फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, प्लस जीएल पाउडर उसमें मशरूम एक्सट्रैक्ट है, प्लस कॉफी फ्लेवर जो आजकल बहुत पसंद आता है लोगों को। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन का कुकी बनाया गया है। द सेकेंड कुकी विच इज हियर वो है स्पारुलिना और बाजरा, और जो थर्ड वाली है वो है चॉकलेट और राजी जेल की। ये चॉकलेट वाली सारे बच्चों की पर्सनल फेवरेट होती है, हम उसको टिफिन में भी दे सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से खाते हैं। प्लस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि आज बीइंग अ डाइटिशियन मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि लोग ना कैलोरीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। लोग हमें बोलते हैं कि हमें बताइए हमने पूरे दिन में कितना कैलोरीज खाया, लोग अपनी कैलोरीज काउंट करते हैं। बट आज के जमाने में सिर्फ कैलोरीज काउंट करना जरूरी नहीं है, हमें हमारे केमिकल्स भी काउंट करने हैं। क्यों सिर्फ कैलोरीज काउंट कर रहे हैं? हम केमिकल्स खाएंगे तो फिर हम उतना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें कैलोरीज के साथ साथ केमिकल्स भी काउंट करने हैं कि हम प्रिजर्वेटिव्स कितना ले रहे हैं, हमारे खाने में केमिकल कितना जा रहा है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रमोट हियर कि हमारी केमिकल फ्री चीजें होनी चाहिए हमारे पास, ऑर्गेनिक चीजें। डीएक्सएन के सारे प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री, 100% ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड। दिस कुकी हियर हैज नो मैदा, नो ट्रांस फैट, सो इट इज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर, माल न्यूट्रिशन। अभी हम आगे माल न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम उसमें ये बताएंगे कि ये स्पारुलिना कुकीज जो है, ये माल नरिश बच्चा जो होता है, माल न्यूट्रिशन के जो शिकार हुए बच्चे होते हैं ना, वो लोग कुछ नहीं खाते हैं। ट्रस्ट मी, वो लोगों को हम खाना देंगे ना, वो लोग को ऐसा एवर्जन होता है कि वो मुंह में डाल के फेंकते हैं बाहर। तो ये स्पारुलिना का जो एक बाजरा कुकी के फॉर्म में हमने बनाया है, ये बहुत अच्छे से वो बच्चे कंज्यूम कर सकते हैं और उनका माल न्यूट्रिशन क्योर होता है। तो डेली 1 or 2 स्पारुलिना कुकीज इज वेरी हेल्पफुल। बहुत ज्यादा अच्छे से, अगर आपके घर में बच्चा है या फिर आपके नेबरहुड में कोई बच्चा आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा पतला है, माल नरिश्ड है, कुछ नहीं खाता है, आप ये कुकी उसको इंट्रोड्यूस करवाइए। ये कुकी उसके जो नॉर्मल मैदे वाली कुकीज है उससे बहुत अच्छे है, वो टिफिन में भी लेके जाएगा, खुद भी खाएगा और बच्चों को भी, अपने दूसरे दोस्तों को भी खिलाएगा। क्योंकि ये हमारा खुद के घर का एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमारे पास भी छोटे बच्चे हैं और वो लोग ऐसे ही खाते हैं। नाउ अभी जब हम स्पारुलिना की बात कर ही रहे हैं तो स्पारुलिना सीरियल की भी बात करते हैं। स्पारुलिना सीरियल को मैंने यहाँ पे द न्यूट्रिएंट बॉम्ब बोला है, मतलब न्यूट्रिएंट से भरा हुआ बॉम्ब है वो एक। क्यों बोला है ये? तो पहली चीज तो ये कि एक न्यूट्रिशियस मील रिप्लेसर है। अब मील रिप्लेसर का मतलब क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पास आज की बिजी लाइफस्टाइल में खाना बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है। मतलब बहुत सारे फैमिलीज में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो उन लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो 2 से 3 घंटा किचन में खड़े रहे, एक प्रॉपर मील बनाए, मेन कोर्स बनाए, सब कुछ बनाए। तो ये एक मील रिप्लेसर है। किसी दिन आप लेट हो रहे हो, किसी दिन आपके पास टाइम नहीं है टिफिन बनाने का, सो यू कैन हैव दिस। अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो आप 1 पाउच लेंगे स्पारुलिना सीरियल का, और अगर आप लंच या डिनर स्किप करो तो आप 2 पाउच लेंगे। ये सीरियल में स्पारुलिना है, जिस स्पारुलिना की हमने बात करी थी, जो अभी कोविड के लिए टेस्टेड है, प्रूवन है, वो है। प्लस इसमें ओट्स भी है। ओट्स में ऐड इनटू फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाएगा, हमारे को बीमारियों से बचाएगा, हमारे को वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो सेकंड पॉइंट, द हेल्दी वे टू लूज वेट हियर। और तीसरा और बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है। जैसे हम सोचेंगे कि स्पारुलिना एक एल्गे है, वो कैसा टेस्ट करेगा, लेकिन हमारे सीरियल में वेनिला फ्लेवर दिया गया है, तो दिस इज वेरी गुड टू टेस्ट। प्लस इट इज 100% ऑर्गेनिक एल्कलाइन फूड। जैसे अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि हमें केमिकल भी काउंट करना है, तो दिस इज अगेन ऑर्गेनिक एल्कलाइन फूड जिसमें केमिकल नहीं है। प्लस इसको आप एक पाउच है, आप कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी कैरी कर सकते हो, इजी टू कैरी है। आप छोटा सा स्लिंग भी कैरी करके जा रहे हो कहीं पे, उसमें आप डाल सकते हैं। और इजी टू मेक है। आप कहीं भी पानी लो, गर्म पानी तो गर्म पानी, नॉर्मल पानी तो नॉर्मल पानी, वो अच्छे से घुल जाता है उसमें, या फिर मिल्क में घोल लो और उसी वक्त खा लो। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ पैकेट ऑफ चिप्स, हम कहीं बाहर गए, हमें भूख लगी, हमने एक चिप्स का पैकेट खा लिया, उससे हमें क्या मिला? केमिकल मिला और फैट्स मिले।
इंस्टेड ऑफ दैट हम एक ऐसे पाउचेस कैरी करेंगे हमारे साथ और हमारी आदतों को थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम हेल्दी होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे विद DXN। सेकेंड एंड माई वेरी फेवरेट, नोनीजी 100% नेचुरल फ्रूट बेवरेज कहा जाता है इसे, नोनीजी को, जैसे मैंने पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था। अब इसकी थोड़ी खूबियां जानेंगे हम। तो पहला है, ये गुड एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। नॉर्मली जहां भी हमारे को पेन है, सर दर्द है, शोल्डर पेन है, जॉइंट पेन है, ये एक बहुत अच्छा पेन किलर साबित हो सकता है हमारे लिए। दूसरा, एंटी डिप्रेसेंट। जैसे कि मैंने कहा, आज के जमाने में जो कोविड का जमाना चल रहा है, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, तो उनका स्ट्रेस बस्टर है, उनके माइंड को रिलैक्स करेगा और एंटी डिप्रेसेंट है नोनीजी हमारा। प्लस स्किन एंड हेयर, इट विल मेक योर स्किन ग्लो। आज कौन नहीं चाहता ग्लोइंग स्किन? सिर्फ आज लेडीज तक ग्लोइंग स्किन सीमित नहीं है, आजकल मेंस भी बहुत ज्यादा अपने स्किन के लिए प्रोटेक्टिव हो गए हैं। तो ये जो हमारे डैमेज्ड प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी में, मोरिंडा सिट्रोफिलिया, दिस नोनीजी जूस विल हेल्प इन रिपेयरिंग दोज डैमेज्ड प्रोटीन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट योर स्किन विल ग्लो और आपके हेयर भी ग्रोथ होते हैं उससे। चौथा है ब्रेन फंक्शंस। जो आपकी मेमोरी है, जो किसी की मेमोरी कमजोर हो जाती है या फिर ब्रेन फंक्शंस डिटीरियोरेट हो जाते हैं, तो ये सब चीजों को भी वो बूस्ट करेगा। ये ऑल इन वन है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये मतलब दिस इज अ होप इन अ बॉटल। और बावल प्रॉब्लम्स मतलब जो हमारे को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होता है, ये आजकल के जमाने में बहुत कॉमन है। आप हर दूसरे इंसान को देखोगे ना, उनका पेट साफ नहीं हुआ है या फिर पतला टॉयलेट हो रहा है या फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये जो बावल प्रॉब्लम्स हमारे हैं उनको भी ठीक करेगा। हम ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम मोरेंजी का इंटेक करने की, नोनीजी का इंटेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन मतलब एक सूजन जैसे जो हमारी बॉडी में आ जाती है, मतलब कहीं भी हमें पेन हो रहा है, कहीं भी हमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, जैसे कि एक बीमारी है आर्थराइटिस जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, तो नोनीजी में एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट भी है। तो हमारे पास यहाँ पे नीड ऑफ द आवर इम्यूनिटी भी है, द सेकेंड नीड ऑफ द आवर एम्प्लॉयमेंट भी है, और जो थर्ड और जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी के, वो सब भी क्योर करने का सोल्यूशन DXN में है। मतलब इट इज एन अम्ब्रेला जो सब चीजों को कवर करता है। आपको यहाँ इस अम्ब्रेला की बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से इम्यूनिटी बनाएंगे, आप यहीं से एम्प्लॉयमेंट भी पाएंगे और आप यहीं से सक्सेसफुल भी बनेंगे। Now this is one more very interesting thing about malnutrition. यहाँ लिखा हुआ है कि हर रोज 40,000 बच्चे मालन्यूट्रिशन की वजह से मरते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये भी एक IMSAM का ही स्टडी है। तो पहले जो मिस्टर सैयद ओबामा है, हु इज द अंकल ऑफ मिस्टर बराक ओबामा, ही वाज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ IMSAM, और उन्होंने स्पाइरुलिना को लेकर माल न्यूट्रिशन को क्योर करने का एक ड्राइव शुरू किया था। इन लोगों ये बच्चों में जो हंगर होता है, जो भूख की तकलीफ होती है, इन सब को क्योर करने के लिए उन्होंने स्पाइरुलिना का इस्तेमाल किया था। एंड दिस ईयर 2020 में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे DXN के लिए कि हमारे अपने डॉक्टर लिम सियोजिन जो हमारे कंपनी के फाउंडर है, CEO है, उनको IMSAM ने इसका गुडविल एम्बेसडर बनाया हुआ है एक डेकेड के लिए। मतलब 2020 से लेकर 2030 तक डॉक्टर लिम is going to promote DXN spirulina and is going to cure malnutrition। जो malnutrition की बीमारी है उसको स्पाइरुलिना के थ्रू क्योर किया जाएगा और उससे करोड़ों बच्चों को मरने से बचाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है, कह सकते हैं कि हमारे जो कंपनी के फाउंडर है उनको IMSAM ने गुडविल एम्बेसडर ये 10 सालों के लिए बनाया हुआ है। सो इट इज DXN स्पाइरुलिना अगेंस्ट मालन्यूट्रिशन। सो अगर ये इतना वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो सकता है, तो हमारे घरों में ये जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हमारे घरों में डेथ्स तो नहीं हो रहे हैं माल न्यूट्रिशन की वजह से, तो जो छोटे छोटे हमारी प्रॉब्लम्स है उन सबको तो क्योर कर ही सकता है DXN। अगर हम वर्ल्ड वाइड इतने सारे चेंजेस देख रहे हैं, इतने रिसर्चेस देख रहे हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं, तो हम एटलीस्ट हमारे लेवल पे इसको थोड़ा तो प्रमोट कर ही सकते हैं। प्लस अभी DXN में इंडिया में एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ है
जो ये RGGL कैप्सूल के पाउडर्स लॉन्च किए हैं डीएक्सन ने इंडिया में। और ये एक बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि हम जब कैप्सूल्स देखते हैं तो लोगों को लगता है कि हम दवाई दे रहे हैं, जबकि ये फूड सप्लीमेंट है। तो जब ये फूड सप्लीमेंट है तो इसको पाउडर फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हमें बताने को आसानी होती है कि ये दवाई नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। प्लस हम इसका ना डोसेज भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे हों, जिनको कैप्सूल निगलने में प्रॉब्लम हो, जिनका जो इसोफेगस है वो छोटा है, तो उसको हम कैप्सूल नहीं दे सकते। तो हम पहले क्या करते थे, हम खोल के पाउडर निकाल के फिर पानी में डाल के उसको देते थे। नाउ वी कैन डायरेक्टली यूज दिस। सेम थिंग गोज फॉर एडल्ट्स। जो बूढ़े लोग हैं, जो लोगों को निगलने में फिर प्रॉब्लम होती है बुढ़ापे की वजह से, उनको भी ये चीज बहुत अच्छे से फायदा कर सकती है। तो जैसे कि डॉक्टर लिम ने कहा था, गैनोडर्मा डज नॉट ट्रीट द डिजीज, गैनोडर्मा विल ट्रीट द बॉडी विल ट्रीट द डिजीज। तो हमें यही प्रमोट करना है, हमें यही चीज लेकर चलनी है कि हम स्पेसिफिकली कोई बीमारी को ये स्पेसिफिक ट्रीट नहीं करता है, ये नॉन स्पेसिफिक है। ये आपकी बॉडी की जो तकलीफ है उसको ठीक करेगा और फिर हमारी बॉडी हमारे को हील करेगी। तो जैसे ये मसाला का बॉक्स है यहाँ पे, तो हमें ये पाउडर को हमारे घर में हमारे मसाले के बॉक्स में रखना है और हमारे डेली के खाने में इसका यूज करना है। इसके लिए ये डिपिक्ट किया गया है कि हमें ये डेली हमारे फूड में डालना है और अलग अलग तरीके से डालना है। अभी हमारा डीएक्सन का फूडोमेनिया कंपटीशन चल रहा है, जहाँ पे हम डीएक्सन पाउडर को किस किस तरीके से फूड में डाल सकते हैं, कैसे कैसे रेसिपीज में यूज कर सकते हैं, ये सब हम बता रहे हैं। और 15 तारीख को ये कंपटीशन खत्म होगा, तो आप लोग सब लोग ट्यून्ड रहिएगा ऑब्वियसली महाराष्ट्र के डीएक्सन के ग्रुप पे। तो हम बहुत सारे रेसिपीज निकाल के ला रहे हैं इस चीज को यूज करने के, कि पाउडर हम कैसे कैसे फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। और आप, आई होप कि वो चीजें, वो रेसिपीज आप लोगों को हेल्प करे। स्पेशली जो वुमेन है जो घर में खाना बनाती है, उन लोगों को ये जरूर दिखाइएगा वीडियो जो हम लॉन्च करने वाले हैं फूडोमेनिया का। उसमें बहुत सारे रेसिपीज आएंगे और उनको बहुत सारी चीजों से खाना बनाने की वो मिलेगी। तो ये है हमारा एक इंस्टाग्राम पेज है डीएक्सन का, जो मैंने बनाया है, हमने बनाया है गैनोथेरेपी विद डीएक्सन, जहाँ पे हम डेली डीएक्सन प्रोडक्ट के अवेयरनेस देते हैं। एंड कमिंग टू द एंड, आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा प्रेजेंटेशन। और ओके, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर कुछ भी हो, तो आप मेरे फादर के उस पे पूछ सकते हैं। कोई डाइट रिलेटेड क्वेरी है, कुछ आपको मेरे प्रेजेंटेशन से समझा नहीं हो, या फिर कुछ डीएक्सन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो मिस्टर सिद्दीकी का नंबर आपके पास होगा, या फिर ये हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है गैनोथेरेपी विद डीएक्सन, इसको आप फॉलो करिए। हम यहाँ पे आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। ओके, okay. Yes, good morning. Thank you so much, sir. Good morning. Good. इब्रत, आपने शॉर्ट टाइम में शॉर्ट एंड स्वीट बहुत एस्पेक्ट्स को आप कवर किया है। आज का जरूरी क्या है, नीड ऑफ द हवर। ये रियली ड्यूरिंग दिस क्राइसिस ये नीड ऑफ द हावर है, to protect our health. Yes, sir. And not to get only employed, to get the prevention and nutrition, right nutrition and prevention, and boost the immunity. The most important thing is how to make an additional source of income. yes, Everybody is looking for additional source of income. There is nobody at this hour of crisis. The need of the hour again is how to protect the source of income. right, sir. Yes, that is why all the people whoever is there in any field, they want to be having some additional source or additional opportunity, or not only those who are in employment, those who are thrown out of employment. Yes, sir. Now
everybody is seeing that what they can do, and more than anything else, now लोगों ने बाहर जाने को डर कर बैठा है, घबराता है, कैसा गब्बर सिंह की तरह अभी गब्बर सिंह बन गया है। अभी बाहर जाने का लोगों को इतना सबको इतना डर है, कैसे हमें कम बार जा सकता है। एवरीबडी वांट्स टू reduce our number of trips to everywhere। अभी क्राउडेड प्लेस को जाने को टोटली बैन किया है, मना है। शादी गीदी एवरीथिंग अभी सब बंद हो गया है। हो गया सोशल शादी और एनी सोशल सेलिब्रेशन, कल्चरल सेलिब्रेशन, रिलीजियस सेलिब्रेशन कहीं भी भीड़ नहीं लगा सकता है, इसीलिए ये सभी बंद हो गया। इसके बाद भी जो शॉपिंग चलना, घूमना, सिनेमा जाना सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। अभी लोगों ने वो बंद भी हो गया है, जो अभी छोड़े तो भी बहुत लोगों ने जाने को 10 बार सोचेंगे, जाना और नहीं जाना। ये हालत डेफिनेटली और कई महीने तक चलेगा अभी सर, ये ईयर तो चलेगा ही। ये ईयर तो चलेंगे, ये ईयर तो चलेंगे। नेक्स्ट ईयर से क्या होंगे मालूम नहीं है। हमारा प्रार्थना है और एक कोरोना जैसा नहीं आना हमको। बट ओनली वे इज, आज का स्वास्थ्य का हालत में हमका एक ही रास्ता बचा है। हमारा शरीर के अंदर जो कमजोरी है, दैट मीन्स इनफ इम्यूनिटी नहीं है, इससे हमने रोगों को अट्रैक्ट करता है। ये अभी टाइम है, बराबर टाइम है सबको रियलाइज करके किस तरह से हमारा इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। नॉट ओनली हमारा फूड से, सप्लीमेंट से, प्रॉपर रेस्ट से, प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और योगा और शून्य हो। यस, अभी हमने जो प्रैक्टिस लोग कर सकता है, ये सभी साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारा शरीर का रोग निरोध शक्ति को बढ़ा सकता है। अभी रोग निरोध शक्ति कितना बढ़ेंगे, उतना हम रोग से लड़ने का हमारा ताकत बढ़ेगी। अभी रोग से लड़ने का ताकत को बढ़ाना, वही अभी बहुत बरस से ये हेल्थ सेक्टर में दिस इज व्हाट वेलनेस रेवोल्यूशन को क्यों आ गया? रोग को दूर करने के लिए वेलनेस इंडस्ट्री आया। रोग को दूर करने के लिए ही वेलनेस रेवोल्यूशन का जानकारी लगभग अभी 30 बरस से 40 बरस से वेलनेस रेवोल्यूशन का शुरुआत जब हो गया, उससे प्रचार पब्लिसिटी चलता है। बहुत कुछ कंपनीज ने वेलनेस रिलेटेड प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करके लाया है। अभी ये वेलनेस रेवोल्यूशन और 20-30 बरस होंगे ये फुल्ली विजिबल होने के लिए। वो अभी भी नहीं दिखता है, थोड़ा यहाँ वहां हमने शोर मचाता है, लोगों को मालूम नहीं है ये वेलनेस क्या है। ये वेलनेस के बारे में बहुत कम जानकारी है। अभी ये वेलनेस का पब्लिसिटी, वेलनेस का ग्रोथ, वेलनेस अवेयरनेस होने के लिए लगभग और 20-30 बरस होंगे। बाई 2050 एज पर प्रोफेसर पॉल्सन पिल्जर, द वेलनेस का अवेयरनेस फुल्ली होंगे दुनिया में। अभी ये वेलनेस का अवेयरनेस होने के लिए और 30 बरस है, इसीलिए और 30 बरस हमको पब्लिसिटी प्रचार में लगे तो उस समय इंडस्ट्री जब ग्रोथ होता है
आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना इनकम आपका बढ़ेंगे सर। आप सभी मिलियनियर बनेंगे, आप सभी करोड़पति बनने में कोई भी लोग कोई भी रोक सकते। जो इन्वॉल्व है, जो इसमें काम करते हैं, पर्टिकुलरली आप यंगस्टर्स इन 20s, our target is to look for the youth of 20s and 30s. 20s 30s को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। आप जब 10 बरस काम करें तो 100% आप अल्ट्रा मिलियनियर बन सकता है। साधारण मिलियन नहीं, सुपर रिच कैटेगरी को जा सकता है। इसीलिए इब्रात जैसा लड़की नौजवान हमको चाहिए काम करने में। आपका फादर को सुपरसीड करके और उसके पहले आप करोन एम्बेसडर बने। आप करोन एम्बेसडर बन सकता है। एंड आई विल ट्राई सर। डैडी को ओवरटेक कर सकता है। अभी डैडी सुन रहे डैडी ने बहुत बरस लिया, वो तो अभी हम सभी बूढ़ा बनने वाला है। हमको एजिंग प्रोसेस में आप सभी यंगस्टर्स इन 20s बहुत जल्दी टेक ओवर करेंगे, आप बढ़ेंगे, इसको मैं आशा करूंगा आप सभी के ग्रोथ। अभी आपका कब होना? अभी शॉर्टली आई एम गोइंग टू Siddiqui, you are hiding and sending your daughter to the front line. It is good, fantastic. अभी आपका डैडी को ओवरटेक करना बहुत जल्दी। वो क्राउन एम्बेसडर बनने के पहले आप क्राउन एम्बेसडर बने, ये हो सकता है। वेरी गुड। आई विश एंड प्रे दैट you will come up in a thank you sir very big way, very fast way. So take over this real wellness revolution from सर ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। yes. Sure. वो करेंगे। हमको आप जैसे यंगस्टर्स नाउ DXN को इंडिया में टेक ओवर करना चाहिए। इसीलिए मैंने ढूंढ कर यंगस्टर को लाता हूँ। आप देखे होंगे कितना यंगस्टर्स मिलेंगे नौजवान ने। आरबीसी ने पहले मुझे चांस दिया, पापा को बाद में चांस दिया, बाद में पापा को। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर।